Namaskar dear students, welcome back. Myself Neha and today we are here for our second lecture of animal cell culture of class 12th. In the previous lecture we have discussed about the basics of cell culture, particularly in case with the animal cells. And today we will discuss about the physical and chemical environment required for the growth of the animal cells. So firstly, the physical environment. When we discuss about the physical environment, we know that the optimal conditions mean the best conditions which are required for the growth of any organism. And for animal cells, the temperature is 37 degrees Celsius. It is the core body temperature which fits for most of the warm blooded animals. तो जो हमारा एनिमल सेल कल्चर रहता है that generally done we do it at the 37 degree Celsius. The next requirement is the pH, that we have to maintain the particular pH so that the animal cells grow at its best. What are the properties which is performed by the animal cell culture when the particular pH is maintained? या हम कह सकते हैं कि एक pH मेंटेन करने से एनिमल सेल कल्चर में क्या क्या फायदे होते हैं. Particular pH maintains the ion balance of the cell. Second, it gives the optimal conditions for the functioning of the cellular enzyme. जितने भी एंजाइम्स है सेल के अंदर उस एंजाइम को पर्टिकुलर पीएच चाहिए वर्किंग के लिए, एंड दिस पीएच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स. It provides the optimal conditions for the binding of the hormones. What does that mean? Binding of the hormones. We know that the cell growth requires different types of the hormones. तो वो hormones किस condition में कैसे काम करेंगे वो depend करता है उसके pH पर. Growth factors to cell surface receptors. Cell surface receptors क्या होते हैं? This is a cell and here are few receptors which will act as a binding site. यहाँ पर कोई भी सिग्नल आया उस सिग्नल के लिए ये बाइंडिंग साइट का रोल प्ले करते हैं और दैट विल give a series of action within the cell. So this pH also helps in the proper functioning of the cell surface receptors. So we should know what is the particular pH or the appropriate pH for the growth of the animal cell. It ranges from 7 to 7.4. अब इस pH को मेंटेन करने के लिए हम एनिमल सेल कल्चर जब प्रोसीजर करते हैं, टेक्निक फॉलो करते हैं, तब हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड इट विद अ बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम. ये बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम क्या है? एक्चुअली जो हमारी बॉडी होती है नेचुरली जब इन विवो कंडीशंस पे काम करती है, हमें पता है कि हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होती है जहाँ पर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाता है एंड दिस कैन डिसोशिएट टू फॉर्म H+ एंड HCO3 नेगेटिव. तो ये हमारे आयंस इसमें बनते हैं अकॉर्डिंग टू द हाई एंड लो पीएच. अगर हमारा एसिडिक कंडीशन ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो हमारी रिएक्शन इधर मूव कर जाती है, और अगर बेसिक कंडीशन ज़्यादा है मीन्स H पॉजिटिव कम है तो हमारी रिएक्शन इधर मूव कर जाती है. तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ एन ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन है दैट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन और द राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द एसिडिक कंडीशन ऑफ द बॉडी.
or we can say the presence of H ions in the body. जब हम लैब कल्चर की बात करते हैं, उस लैब कल्चर में हम बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं and this is NaHCO3. This NaHCO3 dissociate to form Na plus and HCO3 negative. ये सिस्टम एनिमल सेल कल्चर के टाइम पर पीएच मेंटेन करता है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, जो सेल्स फास्ट ग्रोइंग होते हैं, they are able to produce carbon dioxide in adequate amount so that they can form this bicarbonate carbon dioxide buffering system. But when the cells grow at low density, उस कंडीशन में हमें एनिमल सेल कल्चर को इन विट्रो ग्रो करने के लिए 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी पड़ती है. यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि व्हाई एनिमल सेल कल्चर रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज to maintain the carbon dioxide bicarbonate buffering system, किसी भी एनिमल सेल कल्चर को कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है. और जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, दे कैन सेल्फ प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वी नो दैट जब भी रेस्पिरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सेल्स. बट हमारे अगर सेल्स लो ग्रोइंग है, लो डेंसिटी है उनकी, तो हमें एडिशनली 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल्स. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी चेक द पीएच ड्यूरिंग द कल्चर. हमने कोई कल्चर किया हुआ है, उस कल्चर के टाइम पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो सेल्स है, ये अभी जो आयनिक इम्बैलेंस हुआ वो एसिडिक है या बेसिक कंडीशन में है. तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फिनोल रेड. फिनोल रेड इज अ इंडिकेटर टू टेस्ट द पीएच. इन नॉर्मल कंडीशन जब पीएच 7 to 7.4 के बीच में रहता है, इट प्रोवाइड्स चेरी रेड कलर to the cells. If in our culture we are able to observe the cherry red color, we can say the pH is proper. But this phenol red, if there is high basic conditions, pH अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, this phenol red which generally gives cherry red color at this pH, it converts into the purplish color. तो अगर हमारे कल्चर में हमें पर्पलिश कलर दिखाई दे रहा है, तो we can say that the pH gets disbalanced and there is basic conditions. और अगर हमारे पास इसका कलर येलो में चेंज हो जाता है, it means the conditions is highly acidic. तो यहाँ पर फिनोल रेड एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पीएच से रिलेटेड बोर्ड में पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीएच. इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं जो हमने शुरू में 4 पॉइंट्स पढ़े थे. इम्पोर्टेंस ऑफ maintaining pH in animal cell culture. Optimal conditions provide करता है for the functioning of the hormones, for the binding of the growth factors, for cell surface receptors. So this is the answer. The second question is how pH is maintained in the culture medium.
हाउ pH इज मेंटेन्ड इन द कल्चर मीडियम. सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है. In this question we have to write about the bicarbonate carbon dioxide buffering system. So यहाँ पर वही रिएक्शन लिखनी है जो बॉडी में होती है. वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिव्स कार्बोनेट H2CO3 दैट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस HCO3 नेगेटिव. और अगर बाइकार्बोनेट हम ले रहे हैं कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेसिफिकली, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोशिएट होता है एंड अकॉर्डिंगली इट विल मेंटेन द कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, how does even the transient change in pH can lead to the cell death? How does even the transient change, transient का मतलब है थोड़ा बहुत, in pH leads to cell death? मीन्स हमें बॉडी टेम्परेचर चाहिए, सॉरी pH चाहिए 7 to 7.4. अगर ये 6 तक पहुंच जाता है या 8 तक पहुंच जाता है तो क्या सेल डेथ हो जाएगी? हाँ, क्योंकि वो अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ऑप्टिमल फंक्शनिंग है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ pH ऑफ द एनिमल सेल कल्चर. एंड नेक्स्ट फिजिकल कंडीशन इज, हमने अभी तक पहली कंडीशन पढ़ी है टेम्परेचर, दूसरी हमने पढ़ी है pH, एंड थर्ड इज osmolality. Now we will discuss what is osmolality. Osmolality को हम सिंपली बोल सकते हैं, it is electrolyte water balance. इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस. जब हम छोटे क्लासेस में एक वर्ड पढ़ते थे होम्योस्टैसिस या ऑर्डरली रेगुलेशन, इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जब हम बात करते हैं कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में है वो मेंटेन रहना चाहिए. इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल जो डेली लाइफ में डील करते हैं, अगर कभी डायरिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें ORS लेना है. बेसिकली वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट रोल है, दो सॉल्ट्स आर देयर टू प्रोवाइड द प्रॉपर ऑस्मोलैलिटी टू द बॉडी. किसी भी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है. और इसके फ़ायदे क्या है, इसके फंक्शंस, इम्पॉर्टेंटली इट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सेल ग्रोथ एंड इट्स फंक्शन. सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सेल ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ द सेल. अगर ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो आपका सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट प्रिजर्व्स द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल. इस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, उसमें ब्रेकेज, रप्चरिंग नहीं होगा. अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाता है तो ये सेल डिसरप्ट हो सकता है. तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. हाउ ऑस्मोलैलिटी इज मेंटेन्ड, ये क्वेश्चन बनता है. सॉल्ट एंड ग्लूकोज आर द की फैक्टर्स which are responsible to maintain the osmolality, and the normal osmolality which is required is 300 milliosmo
per kg, and this is measured by an instrument known as osmometer. So this is about the osmolality. These are the physical conditions, physical environment required for the growth of the animal cell. केमिकल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है मीडिया. क्या मीडिया किसी भी सेल के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वही कंपोनेंट है दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग सेल्स. जो मीडिया होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जितने भी केमिकल्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है. तो हमने अभी तक पढ़ा टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैलिटी एंड नेक्स्ट इज मीडिया. सो जो भी हमारे पास मीडिया होता है उस कंप्लीट कल्चर मीडिया में दो मेन पार्ट्स होते हैं. consists of two distinct components. और ये दो कंपोनेंट्स क्या है? एक होता है हमारा बेसल मीडिया जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए, और दूसरी चीज होती है हमारे पास ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स. ये दो चीजें चाहिए किसी भी सेल को ग्रोथ के लिए. यहाँ पर हमारे सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो भी हम एडिशनली प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए. किसी भी मीडिया में एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए. हम जब भी फूड खाते हैं उसमें कहते हैं एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए. एंड फ्रॉम लोअर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें मेनली सुक्रोज हम यूज़ कर सकते हैं, माल्टोज यूज़ कर सकते हैं, सिंपलेस्ट जो शुगर है दैट इज़ ग्लूकोज वो यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सेकेंड हमारे मीडिया में होना चाहिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए और उन अमाइनो एसिड्स में भी हमारा मेन स्ट्रेस होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑल दोज अमाइनो एसिड्स विच बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस. तो वो एडिशनली एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करने होते हैं. नेक्स्ट इज द विटामिन्स विच आर ऑल्सो अ की फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल्स. तो विटामिन्स सेल ग्रोथ में, मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मोर ओवर दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ कोफैक्टर्स. ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. नियासिन इज अ कोफैक्टर फॉर इज अ कंपोनेंट ऑफ कोफैक्टर NAD. तो कोफैक्टर्स हमारे लिए किसी भी सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं और वो रोल विटामिन्स पूरा करते हैं. इसके बाद हमें चाहिए हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. फोर्थ हमें चाहिए हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. एंड नेक्स्ट आर द ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स जो बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. इसीलिए इनको हम एसेसरी फैक्टर्स भी बोलते हैं. So these are the components of a media. Now we will discuss about the types of the media for the animal cell culture. हमारे पास दो तरह के मीडिया के टाइप्स हैं एनिमल सेल कल्चर में. एक हम बोलते हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया, क्योंकि जो सीरम है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इट कंटेन्स अ कॉकटेल ऑफ मेनी
न्यूट्रिएंट्स, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड अनदर इज सीरम फ्री मीडिया. हम यहाँ कुछ नाम याद कर लेते हैं मीडिया के. सीरम कंटेनिंग मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ईगल्स मीडिया, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं. आरपीएमआई मीडिया, इसकी भी हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस है, जैसे आरपीएम 1629, आरपीएमआई 1630. आरपीएमआई का फुल फॉर्म है रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट. ये हमारा एक टॉपिक है जो हमने प्लांट सेल, माइक्रोबियल सेल और एनिमल सेल तीनों कल्चर्स में पढ़ना है. और एक हम क्लास डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम तीनों के कंपैरिजंस पढ़ लेंगे कि किस तरह का मीडिया किस तरह के सेल कल्चर में चाहिए होता है. तो यहाँ पर ये जो मीडिया है दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द एनिमल सेल कल्चर. ईगल्स मीडिया हो गया या आरपीएमआई मीडिया के डेरिवेटिव्स हो गए. सीरम फ्री मीडिया में हमारे पास आता है TC199. ये सिर्फ नाम है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने इनको बनाया है, हमें यहाँ सिर्फ कुछ नाम याद करने हैं. सीरम फ्री है तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब हो गया कि इसके अंदर सीरम नहीं है. TC199 या CMR L1060. These are few of the examples. Now the next the next topic which we have to discuss is the serum. ये सीरम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एग्जैक्टली है क्या चीज जो हम मीडिया के अंदर डालते हैं. सीरम क्या होता है? इट इज ब्लड प्लाज्मा. ये ब्लड प्लाज्मा ही है बट फ्री फ्रॉम क्लोटिंग फैक्टर्स. इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते. ये इसका जनरल डेफिनेशन है. इस सीरम का फायदा क्या है, या हम यहां पर बोल सकते हैं विच इज फ्री फ्रॉम फिब्रिनोजन. It is made up of a large type of the growth factors. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं it is a cocktail of most of the growth factors. क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखिए सारे ग्रोथ फैक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन एल्बुमिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे सीरम के अंदर है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारा सीरम प्रोवाइड करता है दैट इज द अटैचमेंट फैक्टर्स. और ये अटैचमेंट फैक्टर्स क्यों जरूरी है या क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके जो सेल्स होते हैं वो जनरली मोनोलेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं, बेस पर लगते हैं, एक लेयर बनाते हैं. और ये वो अटैचमेंट फैक्टर्स है जो इस प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीरम which when we add in the medium it will help in the growth of the animal cell more better. And most commonly used serum is isolated from the fetal bovine, so that is known as fetal bovine serum या fetal calf serum भी हम इसको बोल देते हैं. ये most commonly used serum है. But scientists have faced a few problems while using the serum. जो हमारे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है सीरम को यूज करने के लिए. पहला डिसएडवांटेज है देयर इज द चांस ऑफ blood borne contamination.
क्योंकि जो हम सीरम आइसोलेट करते हैं वो ब्लड से करते हैं, और अगर ब्लड के अंदर कोई एंटीजन है और वो बाई चांस सीरम के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट मे बी द केस, ऐसा हो सकता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी वर्ड क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है, यहां पर हमने एक कल्चर बनाया, इस कल्चर में हमने बेसल मीडिया के साथ सीरम भी ऐड कर दिया और हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिली सेल्स की। क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट हमने एक और कल्चर बनाया, दोबारा से नया कल्चर बनाया, न्यू है ये। यहाँ पर भी हमने एक बेसल मीडिया लिया और यहाँ पर भी हमने सीरम लिया। पर क्या ऐसा 100% श्योर है कि जो प्रॉपर्टीज इस सीरम में होगी वो एग्जैक्टली सेम इस सीरम में होगी? क्योंकि सीरम का सोर्स अलग अलग हो सकता है। स्लॉटर हाउस में कौन सा एनिमल आ रहा है, किससे हम अपना सीरम आइसोलेट कर रहे हैं, इट वेरीज। तो उस कंडीशन में इन दोनों सीरम की क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, एंड देन अगेन द रिजल्ट विच वी विल गेन हेयर मे नॉट बी सेम। तो जब वो सेम नहीं है तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसीलिए साइंटिस्ट आज की डेट में मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं फ्रॉम द सीरम मीडिया टू द सीरम फ्री मीडिया, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक वर्ड और बता देती हूँ, जब भी आप अपनी क्लास 12th की बायोटेक की बुक पढ़ेंगे तो वहां मीडिया के केस में दो वर्ड्स आते हैं, वन इज डिफाइंड मीडिया एंड अनदर इज अनडिफाइंड मीडिया। जो डिफाइंड मीडिया है इसको हम सिंथेटिक मीडिया भी बोलते हैं, एंड अनडिफाइंड इज सेमी सिंथेटिक मीडिया। When the exact composition of each and every nutrient is known, it is defined media, and when it is not known, it is undefined media. यहाँ पर क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने जो सीरम फ्री मीडिया लिया उसमें हमें पता है कि हमने कार्बन कितना डाला, नाइट्रोजन कितना डाला, विटामिन कितना डाला, बट अगर हमने उसके अंदर सीरम ऐड कर दिया तो सीरम के अंदर कौन सा ग्रोथ फैक्टर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज नॉट नोन टू अस एग्जैक्टली। तो जो सीरम फ्री मीडिया है दैट आर द पार्ट ऑफ डिफाइंड मीडिया, एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया आर द पार्ट ऑफ द अनडिफाइंड मीडिया। या टोमेटो जूस डाल दे, कैजीन मिल्क डाल दे, कोई भी हमने एडिशनल चीज़ डाली जिसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एक साथ जाते हैं बट हमें एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन नहीं पता होता, उसको हम सेमी सिंथेटिक या अनडिफाइंड मीडिया बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मीडिया। इस मीडिया में हम लोग दो और चीजें ऐड करते हैं, एक हमने पढ़ लिया है सीरम, और इस सीरम के अलावा हम इसमें ऐड करते हैं एंटीबायोटिक्स। As in the previous lecture, lecture first, we have discussed that animal cell culture का जो growth rate है that is slow, ये धीरे ग्रो करता है। अगर इस कल्चर में कंटैमिनेशन आ जाती है तो अगर बैक्टीरिया की कंटैमिनेशन आती है तो यहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस की कंटेमिनेशन होती है तो फंगस दोनों ही दे विल आउट नंबर द एनिमल सेल कल्चर। मीन्स अब बैक्टीरिया और फंगस तो फास्ट ग्रोइंग है, वो जल्दी ग्रो करेंगे, और जो हमारा मेन मोटिव था एनिमल सेल को ग्रो करने का वो अब फुलफिल नहीं होगा। तो इनकी बैक्टीरिया के स्पेसिफिकली ग्रोथ को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एंड टू मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन and streptomycin.
बट एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करना, बिकॉज इट विल लीड टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज। आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि बैक्टीरियाज पे एंटीबायोटिक्स का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द environment required for the growth of the animal cell. In the physical environment, we discussed about temperature, pH and osmolality, and in the chemical environment we discussed about the media, different types of the media, the defined and undefined media, requirement of serum and antibiotics. So thank you for today, and in the next lecture we will discuss about the vessels and the equipments of animal cell culture and various applications. So thank you.